starting a new topic today, which is called either radians measure in some books or circular measures in some books. Or circular measure. Okay. Achha, so in O levels, from O levels, we know that we measure angle in a unit called degrees. This chapter we're going to use another unit to measure angle, and that unit is called radians. Now, what is radians? Here's a circle, and here's a sector of a circle. If this is radius, and this length of arc is also equals to radius. It has the same length. Let's say this is 5 centimeter, this is 5 centimeter, and if the length of arc is also 5 centimeter, then this angle is 1 radian. The angle is 1 radian. Similarly, if we have a sector, and this is radius, and the length of arc is double of the radius, then this angle is going to be 2 radians, and so on. Okay. From O levels, we know two formulas, one of length of arc. That was L equals theta upon 360 into 2 pi r. अब यहाँ पे this used to be in degrees. Now, since our angle is going to be in radians, the formula will change and the length of arc will now be represented as S instead of L. So the length of arc S is equals to R theta. The radius times the angles in radians, and this angle, like I just said, is in radians. Similarly, in O levels, we found area of sector. This is a sector, and this would be its area. Area of sector का formula होता था, वालेकुम अस्सलाम, theta upon 360 into pi r square. और ये जो थीटा होता था, ये होता था डिग्रीज में. मैम ये कौन से टॉपिक है? सर्कुलर मेजर या रेडियन मेजर. तो इसमें डिग्री के बजाय हमको रेडियन रेडियंस में करता है. हाँ जी, इसकी वजह से लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला चेंज होके ये हो गया, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह हो गया a इज इक्वल्स टू हाफ times radius square times theta. Now this theta has to be in radians. Also, just write down these two formulas and mention that the theta has to be in radians, not in units. Okay. Moving on, I'm going to write a few angles in degrees and we're going to convert them in radians. So, degrees and radians. (30 degree)
45 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and 360 degree. इनकी करस्पॉन्डिंग रेडियंस में वैल्यूज ना आपको याद होना चाहिए. So what you need to remember is that 180 degree is equals to pi radians. ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए that 180 degree is equals to pi, which is 3.142 dot 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 radians. So if you can remember this, you will be able to do most of the conversion. In fact, all of the conversion. Okay. So if 180 degree is pi radians, तो फिर 90 degree जो है वो 180 का हाफ है. तो फिर रेडियंस में क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 2. बिल्कुल सही, पाई अपॉन 2. फिर जो 360 है वो 180 का डबल है, तो रेडियंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर. 2 पाई. अच्छा, 60 कैसे आता है? 180 को किससे डिवाइड करते हैं तो 60 आता है? पाई अपॉन 4. 180 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वी गेट 60. ठीक है, सो फॉर पाई 6, अपॉन 3. हाँ, पाई अपॉन 3. ठीक है. व्हाट अबाउट 45? 180 को किससे डिवाइड करके 45 आता है? 4, 4 से डिवाइड करते हैं. देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये 90 होता है, ये 90 होता है, और ये 45, और ये भी 45. सो 180 में 4 45 आते. सो इट्स गोइंग टू बी पाई अपॉन 4. 4. और 360 डिग्री का करस्पॉन्ड, सॉरी 30 डिग्रीज का रेडियंस में क्या हो? पाई अपॉन 5. 180 को 5 से डिवाइड करके 30 आता है. नहीं, 36 आ रहा 6 से आता है. 6. है. यस, पाई अपॉन 6. ओके. पीछे रह गया 270 डिग्री. तो इसके लिए या तो रेशियोज यूज कर लो या याद रखो. रेशियोज में क्या होगा कि हमें पता है कि 180 डिग्री पाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो 270 डिग्री एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट्स फाइंड एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 180 x equals 270 pi. X equals 270 pi upon 180, which is 3/2 pi. बट ये याद भी होना चाहिए, 3/2 pi. तो अगर आपको ये रेशियो याद है ना कि 180 डिग्री इज पाई, तो आप किसी भी डिग्री को रेडियंस में चेंज कर सकते हो और किसी भी रेडियंस को डिग्रीज में चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चेंज करना है 20 डिग्रीज को, 20 नहीं करते, अगर हम कर देते हैं 23 डिग्रीज को रेडियंस में चेंज करना, तो वही रेशियो यूज करेंगे. व्हाट डू वी नो? वी नो दैट 180 डिग्री is pi radians. So then 23 degree is x radians. Cross multiply and find x. It's going to be 180x equals 23 pi. X equals 23 pi upon 180. और इसकी डेसिमल वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है. ठीक है, मैं कैलकुलेटर 23 अपॉन 180. 0.12777. ओके, 0.12777. ये हो गया कन्वर्ट 23 डिग्रीज रेडियंस. What if you're asked के
1.2 रेडियंस कितने डिग्रीज होता है? फिर सेम रेशियोज यूज करेंगे। हमें पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियंस होता है। तो फिर 1.2 रेडियंस would be x, cross multiply and get x. 180 into 1.2 equals pi x. So divided with pi, 180 into 1.2 divided by pi, what do we get? uh 68.75. 68.75 degrees. Okay. आपने याद रखना है कि अनलेस क्वेश्चन में डिग्रीज मेंशन्ड हो, आपने हमेशा कैलकुलेटर की सेटिंग रेडियंस में रखनी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आगे हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। ऑलवेज keep the setting to radians unless the question mentions degree specifically. Everything else should be calculated in radians. I think we're ready to start the questions. So एक और discussion कर लेते हैं. So if we know that we have an equilateral triangle, so like we know that this is 5, this is 5, this is 5. What's going to be every angle in radians, not in degrees? uh 5/3. Pi by 3 is 60 degrees. 16. Take it, yes. So it's going to be pi by 3, pi by 3, and pi by 3. That's okay. Let's say this is pi upon 5 and we have to find this angle. फिर हम क्या करेंगे? uh pi by 5. Sorry, Pi minus pi by 5 करेंगे। क्योंकि वैसे तो हम करते थे ना 180 डिग्री माइनस एंगल। जैसे अगर ये हमें गिवन होता कि ये लेट्स से 30 है, तो हम कहते ये वाला है 180 minus 30. But now we can't use 130. Instead we use pi. So it's going to be pi minus pi upon 5. 4 pi upon 5. Next, if you're given that this is an isosceles triangle, these two lengths are equal. Let's say 7 and 7. And you know that this angle is pi by 3 and you have to find this angle x. How do we find this angle? Pi by 3 plus pi by 3 is equals to x. No, is equals to 180. Is equals to pi. The sum of angles. हाँ, दोबारा लिखाओ। ये आपको समझ आ गई कि सम ऑफ द एंगल्स इक्वल्स पाई। अब दोबारा लिखाओ इक्वेशन। Pi by 3 plus pi by 3 plus x is equals to pi. ठीक है। And then this becomes 2 pi by 3. So x equals pi minus 2 pi by 3. ठीक है। So that's going to be pi upon 3. Okay. Let's start the past paper questions. Questions उसी तरह के होंगे जिस तरह के हो रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल भी वही होगा, बट अब ये होगा कि हर चीज हम रेडियंस में करेंगे।
So, अगर हमने साइन कॉस टैन भी लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करना है, या साइन रूल यूज करना है, या कॉस रूल यूज करना है, remember that everything will be done in degrees. Okay. So in this question we're given a sector, उसका कुछ पार्ट शेडेड है, एक पार्ट ट्रायंगल है. फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है AD की लेंथ. तो हम कैसे करेंगे? इसकी लेंथ फाइंड करनी है. In this triangle we need this length AD. What do we do? रेशियो अप्लाई करेंगे. कौन सा रेशियो? साइन इक्वल्स हम सॉरी, एक सेकेंड कॉस या tan में से अप्लाई करेंगे. देखो ना, क्या पता है हमें और क्या फाइंड करना है, उस पर डिपेंड करता है. हमने सो क्या टू से पढ़ा हुआ था. some people have हाँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू साइन प्रॉपर ब्रशिंग. तो जो क्वेश्चन मार्क है, ये कौन सी लेंथ है, और जो 12 है ये कौन सी लेंथ? क्वेश्चन मार्क परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज 12 है. ठीक है. और अगर सो कैट वॉस से पढ़ा हुआ है तो ये ऑपोजिट है और वो हाइपोटेन्यूज है. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता Sine साइन है? साइन going to be sine 0.6 equals opposite, which is AD upon hypotenuse. कैलकुलेटर को रेडियंस में सेट करो. मोड में जाके रेडियंस में जाना होता है. और मुझे आंसर बताओ. 12 into sin 0.6. 6.775. 6.775. Let me check. Yes, 6.78 is the answer given. Okay. Part 2, find OD. No, sorry, still part 1, but we have to find OD. Now OD, Obviously, हाँ, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं. ये फाइंड करना है. ये पता चल गया 6.75. बताना 75775 के बाद क्या था. लेट्स यूज अ लॉन्ग आंसर. 77570. 70. Okay. Since we have to use this length in the next part, use the longest possible value. कैलकुलेटर में आप आंसर की यूज कर लेना, लेकिन एग्जामिनर को एटलीस्ट 5-6 डेसिमल प्लेस तक बताना. ओके, अजहर अब लगवाओ उस पे पाइथागोरस थ्योरम. 6.77570 square is equals to नहीं गलत बोल गया. प्लस OD square ठीक है, is equals to 12 square. बिल्कुल सही है. अब ओडी को सब्जेक्ट बना के बताओ. 12 square minus 6.77570 square. और इसके बाद square root. So OD comes out to be what? Uh, 9.9040. Part 2. Perimeter of the shaded region. Okay, let me just round this off as well. OD would be 9.90. But if we need OD again, we'll use the longer answer. Okay, perimeter of the shaded region. So perimeter is this length, which we already know, plus this length, ye nahi pata, and also plus this length. So yellow length to pata hai, let me write that down. It's 6.77570. पहले part पे निकाल लिया था. Plus
डी बी कैसे आएगा? द ब्लू पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क नहीं ब्लू पार्ट, डी बी, नॉट द पिंक पार्ट. ब्लू पार्क यहां से यहां तक लेंथ क्या है? ओ से लेकर बी तक. हमको नहीं पता। देखो ये सेक्टर है ना पूरा, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, दोनों रेडियस होती है, तो ओ से बी तक क्या लेंथ है? 12। हाँ 12. तो जो डी बी है ना, दैट्स गोइंग टू बी 12 माइनस, तो मैं ब्रैकेट में लिखूँ 12 माइनस ओ डी 9.90402, इससे आ जाएगा डीबी. बेशक आप अलग से निकाल के बाद में ऐड कर लो या इसी वर्किंग में ऐड कर लो. Okay, this gives us the blue length dB. Now let's talk about the pink length, which is AB. That is length of arc, और उसका क्या फॉर्मूला है? S equals R times theta. So R is एस क्या hmm एस क्या चीज है फॉर्मूले में? तो कहते हैं, इस लेंथ ऑफ आर्क को S कहते कि और आर हैं. रेडियस है रेडियस। और थीटा है एंगल इन रेडियंस. So it's going to be radius of this sector is 12 and theta is 9.9, sorry, 0.6. Add all this up, tell me what we get. हाँ 16.071। 16.07. Okay, so rounded off would be 16.1. इससे आगे भी decimal places लिखनी है 16.07 से 5-6 लिखनी होती है before you actually round it off. Okay. Last part is find the area of the shaded. How do we do that? Area of the shaded region. ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको पूरे सेक्टर के एरिया से माइनस कर। माइनस कर दे. कि कौन सा बड़ा एरिया, कौन सा पहले लिख और कौन सा माइनस साइन के बाद लिख? ट्राइंगल का बड़ा एरिया। ट्राइंगल का बड़ा एरिया और सेक्टर का छोटा एरिया. ये कैसे हो सकता है? ये सेक्टर है, ये बड़ा है, बस वो ट्राइंगल छोटा है. मैं वो शेडेड पार्ट को सिर्फ देख रहा था। नहीं नहीं, वो सेक्टर थोड़ी है. सेक्टर तो ये पिज्जा स्लाइस है जो पूरा बना. ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा minus area of triangle, which is half times we're given the base and we're given the height. Right angle के साथ हमें दोनों लेंथ्स पता है, so let's just use that. वरना हम एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. ओ लेवल्स में हमने एक और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने? पर टू बेस ए बी साइन सी। हाँ, हाफ टाइम्स वन लेंथ, इधर एक साइड 12 है और एक साइड वो एक और साइड ट्रायंगल की है 9.90402 और टाइम्स साइन 0.6. ये भी यूज हो सकता है. बट सिंस इधर बेस भी पता थी, हाइट भी पता थी, तो वो मैं पहला वाला यूज कर रही हूँ, बट यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस. So half times radius square times theta minus half times base square
9.90402. Sorry, half times base times height. So 6.775. What does that give us? In 9.64666. 9.64666. Okay, that's a long enough answer. So 9.65 would be the rounded off answer. Units square. Units be given as centimeters. So centimeters square. Perimeter would be in centimeter. यूनिट के कोई मार्क्स तो नहीं होते बट लिख लेना चाहिए. ओ लेवल्स में तो यूं लिखा होता था डैश सेंटीमीटर स्क्वायर. So you just had to write the answer. O levels में there's no such space given for the answer only. So you have to write the formula yourself. लिख दो तो बहुत अच्छी बात है. नहीं भी यूनिट्स लिखने होते हैं. जरूरी नहीं है बट लिख देने चाहिए. Question 2. In the diagram, OPQ is a sector of the circle with center O and radius R. Angle QOP is theta radians. The tangent to the circle at Q meets OP extended at R. Show that area A centimeter square of the shaded region is this. Shaded area find करना है simply. बाकी बस figure को वो explain कर रहे हैं. Okay, अब shaded area is not a fixed shape. Shaded area हमेशा ऐसे आता है complete shape minus unshaded area. So what is going to be the area of the entire shape? Area of the entire triangle. Area 1/2. 1/2 times what? AB sin 3. But आपको क्या पता है दो sides triangle की जिनके बीच का एंगल भी पता हो. नहीं पता ना. ये पूरी लेंथ नहीं पता, खाली आर तक पता है, यहाँ तक पता है बट हमें ये पूरी लेंथ चाहिए. और दूसरा उस फॉर्मूला में तो साइन आता है, यहाँ साइन तो नहीं. सो इसीलिए हम उसको वैसे भी अवॉइड करें. ओके, मुझे बताओ कि ये लेंथ निकाली जा सकती है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा. क्योंकि क्यू आर एरिया को फाइंड करने में यूज किया जा सकता है. हाफ टाइम्स आर टाइम्स क्यू आर हो जाएगा, राइट. और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, इसका एरिया. तो 360 into pi r. वो तो डिग्रीज में होता है. बस पहले आर्क लेंथ निकाल लेंगे. उससे क्या होगा. अच्छा नहीं बस 1/2 r square. r square थीटा कर लेंगे. 1/2 आर स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब मुझे क्यू आर चाहिए. क्यू आर कैसे आएगा. बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेंगे. क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना फिगर. यहाँ राइट एंगल बना, ये आर है और ये थीटा है. तो ये लेंथ कैसे आएगी जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है. और बस tan यूज करेंगे. थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर
and this is base. So tan theta equals QR upon R. So QR is R tan theta. So half times R tan theta minus half R squared theta. Half R square कॉमन आ गया दोनों में और tan theta minus theta आ गया. So we have shown that area is equals to this. Part 2. The case where theta equals 0.8 and radius is equals to 15. Evaluate the length of perimeter of the shaded region. खाली shaded region का area चाहिए. तो एक तो yellow length चाहिए. फिर हमें ये blue length चाहिए. और फिर हमें ये third pink length चाहिए. Perimeter निकाल. थीटा और R की वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट करनी होंगी 0.8 एंड 50. सो क्यू आर तो हमें ऑलरेडी पता है किसके इक्वल था R थीटा के. ठीक है. सो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्यू आर इक्वल्स R थीटा में पार्ट 1 से पता है R tan थीटा. सॉरी. So it's going to be R is 15 times tan 0.8. बताना क्या बनता है. Yeah, 15.4445. 3.4445. अच्छा. अब ये क्या बनेगा जो लेंथ ऑफ आर्क है क्यू पी. 15.5. कैसे. नहीं, ये वो मैं राउंडेड ऑफ QP. कर सकता ओके. नहीं नहीं उसको अभी नहीं राउंड ऑफ करना. वो आखिर में पेरीमीटर निकाल के राउंड ऑफ. जी बताओ क्यू आर किसके इक्वल है. Plus 12, कैसे. um, 15 into 0.8 Q. आर थीटा फॉर्मूला होता है ना एस का. ये एस है लेंथ ऑफ आर्क. एस इक्वल्स आर थीटा होता है. सो आर हो गया 15 और थीटा हो गया 0.8. क्या बताया क्या आता है. 12. 12. तो ब्लू पार्ट हो गया 12. अब पीछे रह गया पिंक पार्ट. उसकी लेंथ कैसे आएगी. मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या पाइथागोरस से OR निकाल के फिर O की से माइनस कर देंगे. बिल्कुल सही है. R is 12. नहीं सॉरी 15. So this is 15. यहाँ पे एक राइट एंगल है ये हमें पता है. और जो क्यू आर है वो हमने भी निकाला है 15.4445. तो पाइथागोरस यूज कर लेते हैं ओ आर के लिए. सो आई एम राइटिंग ओ आर इक्वल्स स्क्वायर रूट ओ आर सी है. सो 15 स्क्वायर प्लस 15.4445 स्क्वायर. ये बताना ओ आर क्या होता है. बस मेरा 21.5298 है. 21.9. 5298. 15.506. दोबारा करके देखो. 15 स्क्वायर प्लस 15.4445
44452 स्क्वायर्ड। अच्छा मैंने स्क्वायर नहीं लगाया या शायद लगाया था। इस पे भी स्क्वायर्ड और अंडर रूट दोबारा कंफर्म करो क्या 21 वाला ठीक है 15 वाला 21.5298। ठीक है। ओके तो बस अब 21.5। ठीक है। अब पी आर चाहिए तो वो आएगा इस लेंथ को आर से माइनस कर 5298 21.5298 माइनस रेडियस which is 15 तो क्या आता है 6.5298। okay so now you add the three तो क्या आता है 33.9743। so it's going to be 33.34 points अच्छा नहीं 3 significant figure पे it is going to be 34 चलो आज के लिए बस यही है। अब होमवर्क में आपने एक अगला क्वेश्चन करना है ठीक है ओके ठीक see है। you guys tomorrow Allah Hafiz